Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia. Students, today we are going to start a new chapter of our class 7 science, that is chapter number 16. Water, a precious resource. Yes, water is precious for us. In this chapter we are going to discuss about how we can save water and what we can do for the saving of water and how much water is precious for us. Student, if I ask you that can you imagine your life without water, then your answer will be no. बिल्कुल नहीं. पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. Isn't it? So students, have a look on the topic which we are going to discuss today. So very first topic is how much water is available on earth. Yes, for our use, how much water is present on our earth that we can consume it for our daily uses. Clear everyone? The next one is different forms of water. Yes, from the primary classes we already had discussed that there are three forms of water: solid, liquid and gases. So here we will discuss the available forms of water. Clear everyone? Next one is the water cycle, जिसको हम छोटी से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, and we will discuss again about the water cycle here. Clear everybody? Student, the next one, a very important one, is groundwater as an important source of water. Yes, under the ground the water is present there and it is the important source of our water. Clear everybody? The next one will be the uses of groundwater. There are lots of uses of groundwater that we will discuss here. Clear everyone? And the last one and very important point is water table depletion. That means that day by day the level of the water under the ground is decreasing. Clear everyone? So these are the topics which we will discuss in this chapter. Student, you might have heard a line that is Jal hai to kal hai. That means if you have water in present, then you can think about your future. Clear everybody? So student, try to understand this. Clear everybody? Students, I think you all had participated in many drawing competitions, many poster competitions and many exhibitions in your school, in your society. और हम ये सारे के सारे poster making competition और ये exhibitions organize क्यों करते हैं? किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए. Isn't it? जैसे एनवायरनमेंट डे आया तो हमने एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया, हमने पोस्टर्स बनाए, हमने ड्राइंग बनाई, हमने स्लोगन राइटिंग कंपटीशन किया. Isn't it? So students, when you participated in these type of competition, these types of poster making, drawing making competition, what exactly we are giving or what exactly we are getting, that is the knowledge, that is the information, how we can save water, how we can save our nature, and we are giving information and we are spreading that awareness in the society that how much water is available and how we have to save that water, how we can conserve our nature. Isn't it? Students, for the saving of water, for the conservation of water, every year on 22nd of March, it is celebrated as World Water Day. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? अब सब बच्चों को ये तो पता है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, ऐसे ही वर्ल्ड वाटर डे कब आता है? 22nd of March एवरी ईयर. अब हम क्यों मनाते हैं? इट्स नॉट अ मैटर टू वंडर. ऑफ कोर्स सी बात है कि हम कोई भी डे, चाहे वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, वर्ल्ड वाटर डे हो, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हो या और कोई डे हो, ओजोन लेयर डे हो, हम ये सब क्यों मनाते हैं? फॉर द कंजर्वेशन. Clear everybody? Students, no wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. और हर साल जब हम ये डेज मनाते हैं, हर साल कोई ना कोई थीम होती है और इसी तरह 2021 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? इट इज़ वैल्यूइंग वाटर.
Clear everybody? Students, the amount of water that is recommended by United Nations for a person for drinking, for washing, for cooking, for maintaining proper hygiene is minimum of 50 liters per person per day. किसी एक इंसान के लिए पूरे दिन भर में उसके जो डेली यूजेस के लिए जो पानी चाहिए वो कितना है 50 लीटर्स पर डे पर पर्सन, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, वॉशिंग के लिए हो, कुकिंग के लिए हो या उसकी सिंपल सी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए. सो रिमेंबर इट इज 50 लीटर per day per person. Clear everybody? This amount is about 2.5 buckets of water पर पर्सन पर डे. बिल्कुल 2 से 2.5 बाल्टी पानी एक इंसान को अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए चाहिए. Clear everybody? Students, a question that I want to ask you that is your family getting at least this much of water? How much? It is 50 liter per day per person in your family is getting that amount of water every day, then you must be feel fortunate. हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमारे घर में हर इंसान को 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे मिल रहा है. Clear everybody? If yes, we should consider ourselves fortunate because millions of people in our country do not get enough water and this is the truth. ये सच्चाई है कि हमारे देश में काफ़ी लोगों को दिन भर में इतना पानी पूरे परिवार को ही नहीं मिलता है. अगर हमारे परिवार में हर इंसान को 50 लीटर पानी पर डे मिल रहा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं बच्चा. Clear everybody? Students, in some places there is an acute shortage of water. Yes. Students, you might have seen in movies or in television serials that कि कहीं कोई स्लम एरिया है जहाँ पर पानी भरने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है और उस लंबी लाइन में एक इंसान के पास एक से ज़्यादा बर्तन होते हैं पानी फिल करने के लिए. That is showing that कि there is acute shortage of water. क्लियर? हमें ये सब चीज़ें बहुत इजी लगती हैं. क्यों? क्योंकि हमारे घर में सुबह शाम 2 टाइम पानी आ जाता है. क्लियर? हमें मतलब द पर्सन्स हु आर लिविंग in the cities, clear, or the persons who are living near the water sources. Clear everybody? Tap running dry, long queues for water, fights, marches, protests for demanding of water have become a common sight especially during summers. Yes. देखो, कई बार तो नल सूखे के सूखे पड़े रहते हैं, पानी नहीं आता है. आप लोगों ने लंबी लाइन देखी है पानी के लिए और कई बार तो वो लंबी लाइन धीरे 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 इतनी लंबी हो जाती है कि जब लगता है पीछे वाले को मेरा नंबर आने वाला ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? फाइट्स हो जाती हैं. लोग बाग पानी की कमी की वजह से मार्चेस करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज दे आर डिमांडिंग द वाटर. अब बेसिक नीड के लिए तो बच्चा पानी चाहिए कि नहीं चाहिए. और स्पेशली ये सारे सीन्स हमें कब देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग समर सीजन. क्यों? क्योंकि समर सीजन में वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है. अब आप सोच के देखो, अगर आपके घर में कूलर है तो एक कूलर को भरने के लिए कितना पानी चाहिए? इज़न्ट इट? क्लियर एवरीबॉडी? अगर हमें पानी मिल रहा है, हमारी पानी की नीड फुलफिल हो रही हैं तो हम फॉर्चुनेट हैं. Clear everybody? But there is a acute shortage of water. This is the truth. Students, is it not true that we face acute shortage of water? Yes, it is true. बिकॉज अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ये रियलिटी है कि वाटर की शॉर्टेज है. और इसको समझने के लिए या इसको औरों को समझाने के लिए what you can do a activity, and in this activity what you have to do, you can collect clippings from newspapers and magazines on the news items, articles and pictures related to the water
शॉर्टेज, आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, स्पेशली जो समर्स में जो पेपर्स न्यूज़पेपर्स आते हैं, आपकी क्लिपिंग्स आती हैं ना उस वक्त. Clear everybody? What you have to do? You have to paste them in your scrapbook and share it with your friends. Clear? Have a look on the picture. देखो ऐसे आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगा सकते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि इस बार पानी मतलब पानी की इतनी कमी है, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, बारिश अच्छी हुई है तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, किसान लोग बहुत खुश हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है तो पानी भी आसपास के जो भी नेचुरल वाटर सोर्स हैं वहाँ पर क्या होता है, पानी कम आता है, जिससे क्या है, फसलें भी अच्छी नहीं होती हैं. तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ कटिंग्स, पिक्चर्स आप कट करके अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. Clear everybody? And by doing this activity you can just inform each other or you can show that there is a scarcity of water. Clear? Students, do you know that this acute shortage of water is not the problem of India, it is a worldwide problem. और आप लोगों ने शायद कई बार देखा है या नहीं देखा है कि कुछ लोग सिर्फ एक मटके पानी के लिए घंटों किलोमीटर चलते हैं तब जाके वो अपने घर के लिए एक मटका पानी भर पाते हैं. एंड स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस. Clear everybody? So we can say that water shortage has become a matter of concern throughout the world. And student, it is estimated that in few years from now more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. Have a look on this picture students. आप लोगों ने पहले भी देखी है, नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़े हैं और आप लोगों को भी पढ़ने चाहिए. बच्चा यहाँ देखो, इस बच्ची को अपना ना पानी का मटका भरना है और ये बच्ची कहाँ से पानी भर रही है, एक गड्ढे में से पानी भर रही है. घर जाके ये बच्ची इस पानी को फिल्टर करेगी कि नहीं करेगी, कपड़े से छानेगी कि नहीं छानेगी, हमें नहीं पता. लेकिन इस पिक्चर से ये तो शो हो रहा है कि पानी की कितनी किल्लत है. सो हमें पानी को सेव करना चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें दोनों टाइम पानी मिलता है तो उस पानी की बचत भी करिए. क्लियर? क्योंकि हम बचाएंगे तो शायद किसी और को पानी मिलेगा. Okay students, do you know that कि year 2003 was observed as the international year of fresh water to make people aware of this dwindling natural resource. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साल था 2003 उसको हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर to make people aware of this dwindling natural resource. हम क्या कर रहे हैं, हम अंधाधुंध पानी को यूज़ कर रहे हैं, हमें लगता है कि पानी कभी ख़त्म ही नहीं होगा. But in 2003 that year was just observed for the international year that is making awareness in all the peoples that कि ये जो पानी का सोर्स है ना ये अनलिमिटेड नहीं है. Clear everybody? Let's discuss about how much water is available, and this is very important topic. Class 7th, हमारी अर्थ पर कितना पानी है. अब हमारी अर्थ को देखो, हमारी अर्थ स्पेस से है ना ब्लू दिखती है. क्लियर एवरीबडी? अब हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू क्यों दिखती है? बिकॉज द मैक्सिमम सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. एंड हाउ मच इट इज? स्टूडेंट्स, अर्थ अपीयर ब्लू. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. देखो नीली दिख रही है, इसको ऐसे अज्यूम करो, सपोज दिस इज योर अर्थ एंड दिस पार्ट, दिस 71% ऑफ योर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. और ये जो वाटर है ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, हैव अ लुक. ऑलमोस्ट all the water on the earth is contained in the seas, oceans, river, lakes, ice caps as groundwater and in atmosphere. Clear everybody?
समझ में आ गया? पानी कहाँ कहाँ है? सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर और हमारे एटमॉस्फेयर में भी। क्लियर एवरीबॉडी? अब हमारे पास इतना पानी है, फिर भी मैम आप कह रहे हो देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। बच्चा, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। समझ में आ गया? इसलिए वाटर की स्कैरसिटी है। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। पानी तो है, लेकिन हमारे यूज के लिए हमें कैसा पानी चाहिए? फ्रेश वाटर। और जो पानी अवेलेबल है उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वाटर टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं, भगवान का दिया हुआ पानी है, खूब बरतो, कहाँ कमी है पानी की? बट इट इज नॉट। क्लियर एवरीबॉडी? Let us do an activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. क्लियर? अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जो हमें शो करेगी कि हमारी अर्थ पर जो पानी है वो कितना कितना अमाउंट में एग्जैक्टली है। आपको समझ में आएगा कि जो 71% का पानी है ना हमारी अर्थ सरफेस पे, इसमें से कितना पानी कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितना पानी हम काम में ले सकते हैं। क्लियर? हैव अ लुक हियर स्टूडेंट्स। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब इस टेबल में देखो, फर्स्ट तो है स्टेप्स, सेकंड है फिगर, दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर यू, एंड हियर द रिमार्क्स. Read one by one and try to understand. It is very easy and it will clear the concept. Okay? Take a medium sized bucket and fill it up with water. It contains about 20 liters of water. बिल्कुल, हमारे घर में जो मीडियम साइज की बाल्टी होती है उसमें अप्रोक्सीमेट 15 से 20 लीटर पानी आता है। हमने भर लिया इस बाल्टी के अंदर पानी। Assume that this water represents all the water present on earth. ये आपकी अर्थ का पानी है। कितना? 71%. Clear everybody? समझ में आ गया? Now take a spoon of about 5 ml capacity and transfer 100 spoons of water from bucket to a small container like a bath mug. सबके घर में वो नहाने वाला मग होता है ना, डब्बा होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बाल्टी में से एक स्पून, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 ml, ठीक है, वो स्पून हम इसमें 100 डालेंगे। किसमें? इस बाथ मग में। और अब 100 स्पून जो हमने पानी इस बाथ मग में डाला है, दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ये डब्बे में जितना पानी है, ये पानी वो पानी है जो फ्रेश वाटर है, जिसको ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून्स ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। अब आपको ग्लास टम्बलर लेना है। अब वो जो आपका मग है ना, बाथ मग, उसमें से आपको 30 स्पून्स इस ग्लास टम्बलर में डालनी है। समझ में आ गई? 100 थी स्पून, उसमें से कितनी निकाल ली हमने? 30 स्पून्स। This gives a measure of usable water present as groundwater. Again, read it carefully. This gives a measure of usable water present as groundwater. ये जो ग्लास टम्बलर में पानी है, ये ग्राउंड वाटर का वो पानी है जो यूजेबल है। Clear? Finally, take out a quarter. A quarter means 1/4 spoonful of water from the mug. अब उस मग में से ही 1/4 स्पून फुल ऑफ वाटर निकाल लीजिए। बच्चा, ये जो चम्मच में अब पानी है ना,
It represent the water present in the lakes and rivers of the world. ये वो पानी है जो वर्ल्ड की रिवर और लेक्स में प्रेजेंट है. सोच के देखो, आपके 71% में से आपकी नदियों और झीलों में कितना पानी है. क्लियर स्टूडेंट्स? द वाटर लेफ्ट इन द बकेट. अब देखो, वो जो हमारा 71% जो बाल्टी में पानी था ना, उसमें से हमने कितनी स्पून्स निकाल ली थी? 100 स्पून्स निकाल ली थी. उसके बाद जो पानी वहाँ बचा था, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर. सलाइन मीन्स जो खारा पानी है, विच इज प्रेजेंट इन द सीज, ओशियंस एंड पार्शियली एज ग्राउंड वाटर. यस, ग्राउंड वाटर में भी सलाइन वाटर है. कई बार देखा है ना, कई कई जगह का पानी बहुत खारा होता है कि ज़मीन में पानी ही खारा है. दैट ओके, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज. समझ में आ गया? द वाटर लेफ्ट इन बाथ मग. 30 चम्मच और वो 1/4 चम्मच निकालने के बाद जो पानी आपके मग में, बाथ मग में बचा है, रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म, यानी जो जमा हुआ है इन ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड परमानेंट स्नो, और जो कि हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो ही नहीं सकता. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि लिटरली कितना परसेंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. ओके स्टूडेंट्स, it means that small quantity of water is available for our use. Yes, but how much? अगर अब हम उसका percentage निकालें, this amount is roughly 0.006% of all water found on earth. 71% आपके अर्थ पर पानी है, जिसमें से सिर्फ 0.006% ऑफ वाटर यू कैन यूज. ये हमारे कंजप्शन के लिए प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है? इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. इसलिए पानी को सेव करिए, पानी को बचाइए. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर? कंटिन्यूअस यूज विल someday exhaust all the water available for use. Water on earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. Yes, देखो, हम कंटिन्यूस पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी मेंटेन है अर्थ सरफेस पे. कैसे मेंटेन है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वाटर साइकिल, जो हमने हमारी प्राइमरी क्लासेस में या हमने हमारी 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है. क्लियर एवरीबॉडी? अब जब ये वाटर साइकिल का प्रोसेस हम पढ़ते हैं, तब हमने नोटिस किया है कि जो हमारा पानी का फॉर्म है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसियस भी होता है. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, when water circulate through the water cycle, it can be found in all the 3 forms: solid, liquid and गैस. अब देखो, सॉलिड कहाँ होता है, लिक्विड कहाँ होता है और गैस कहाँ होता है. देखो बच्चा, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में आपको आइस एंड स्नो मिल जाती है अर्थ पे. गैसियस स्टेट क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर एंड दैट इज वाटर वेपर. सर्दियों में भाप दिखती है, फॉग दिखता है ना, दैट इज. अब लिक्विड स्टेट एवरीबडी नोज कहाँ कहाँ है? आपकी लेक्स में, आपकी रिवर्स में, ओशियन में, अंडरग्राउंड में. क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो, इसको वापस से डिस्कस करते हैं कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं, आपके आइस कैप्स हैं, आपके जो ना बर्फ़ के पहाड़ हैं, देखे हैं आप लोगों ने जब आप कभी घूमने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं या शिमला जाते हैं, कुफरी जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो क्या है? दैट इज़ द स्नो.
Clear everybody? So the solid form snow and ice is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. Clear? यहाँ पर आपको water कैसी form में available है? It is in solid form. Liquid water is present in oceans, lakes, rivers and even underground. And the gaseous form of water is water vapor. So the gaseous form is the water vapor present in the air around us. हमारे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. Clear everybody? Students, the continuous cycling of water among its three forms, solid, liquid and gas, keeps the total amount of water on earth constant even when the whole world is using it. देखो, पूरा संसार पानी यूज़ कर रहा है, ठीक है, सब जगह अलग अलग पानी अलग अलग कामों में यूज़ हो रहा है, फिर भी पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन है. एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज बाय द water cycle, and during water cycle all the three forms of water are used. Clear? Have a look on the water cycle बच्चा. You know that कि there are so many water bodies around us, चाहे वो ocean हो चाहे वो lake हो. तो sunlight की help से क्या होता है, जो हमारी water bodies हैं वो water evaporate होता है. Clear? और ऐसे ही plants में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है और इधर से इवापोरेशन हुआ, पानी कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाके एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. यहाँ जाकर आपकी वाटर वेपर्स कूल होती हैं एंड टुगेदर दे फॉर्म अ क्लाउड. क्लियर? और जैसे ही क्लाउड्स आपके भारी होते हैं तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है प्रेसिपिटेशन. ठीक है, बारिश होती है, बर्फ गिरती है, अल्टीमेटली क्या है, पानी नीचे आ रहा है. कहाँ पर, अर्थ पे आ रहा है. प्रेसिपिटेशन हो रहा है, स्नो मेल्ट हो रही है, तो पानी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली डायरेक्टली या तो वाटर बॉडीज में आएगा या बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन वो ग्राउंड में जाएगा. दैट इज नोन एज द ग्राउंड वाटर. बारिश हो रही है तो भी सिंपल सा पानी क्या है, या तो आपके वाटर बॉडीज में जाएगा या इनफिल्ट्रेशन के थ्रू आपके अंडरग्राउंड में जाएगा. अल्टीमेटली यहाँ वेपर. क्लियर? फिर यहाँ पर आपका ये सॉलिड फॉर्म, यहाँ पर फिर ये वाटर फॉर्म. क्लियर? इसका मतलब पानी की तीनों फॉर्म्स यहाँ पर काम में आ रही हैं और पानी जहाँ से गया था वापस वहीं आ रहा है. दैट मीन्स बाय वाटर साइकिल the water amount is maintained while the world is using it continuously. Clear everybody? Students, आपके यहाँ पानी कैसे पहुँचता है घरों में? अब आप कहेंगे मैम नल खोलते हैं और पानी आ जाता है. No, I don't want to ask this. मतलब who is giving you the services? That means कि आपके यहाँ पे पानी पहुँचाने का काम कौन करता है. देखो, गाँव में आज भी कई जगह ये है कि आपको कुएं पे जाना पड़ता है या फिर कोई पब्लिक नल होता है, वहाँ जाकर आप पानी फिल करके और लेके आते हैं. बट इन सिटीज़ और इन सम ऑफ द विलेजेस जहाँ पर हमारी सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छे से पहुँच रही हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो सिविक बॉडीज़ हैं, यानी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो पानी सप्लाई करती हैं. सप्लाई कैसे करती हैं कि आपका जो वाटर सोर्स होता है, जैसे अपने यहाँ पर अगर मैं जयपुर की बात करती हूँ तो वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द बीसलपुर डैम. ठीक है, वो हमारा वाटर सोर्स है, वहाँ से हम थ्रू पाइप्स घर घर पानी पहुँचाते हैं. क्लियर? आपकी पूरी जो पाइप सेटिंग्स होती हैं वो ऐसे हैं और फाइनली जो हमारे यहाँ पर जो टैंक होता है वहाँ पानी आता है और वहाँ से सुबह शाम घरों के अंदर पानी पहुँचता है. Clear everybody? Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. The water is drawn from nearby lakes, river, ponds and or wells. Clear? But many villages do not have such a water supply system. Their people fetch water directly from the
सोर्सेज। अब वो सोर्सेज आपका क्या हो सकता है, नदी, तालाब, जो भी है। क्लियर एवरीबॉडी। और इसके लिए घर की औरतों को बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, घर के बच्चे भी हेल्प करते हैं। Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water। और मैं तो ये चीज़ें ना बहुत करीब से देखी हैं बच्चा। कई बार तो बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते थे। क्यों? क्योंकि हम पानी भरने गए थे, और जहाँ पानी भरने गए थे वो उनके घर से बहुत डिस्टेंस भी थे वो जगह। और जब तक पानी भर के आते हैं तब तक क्या होता है, स्कूल का टाइम निकल चुका होता है या वो स्कूल के लिए लेट हो चुके होते हैं। सो हमें क्या करना है, या हमारी गवर्नमेंट्स को क्या करना है कि हाँ, हम हर घर में पानी के लिए एक प्रॉपर कनेक्शन, एक प्रॉपर सप्लाई सिस्टम रखें। क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अभी भी कई जगह बहुत सारे लोग पानी कहाँ से लेते हैं, ट्यूबवेल से लेते हैं, हैंड पंप से लेते हैं, कुओं से लेते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? A large number of people draw water from wells, tubewells or hand pumps. Clear? The children suffer a lot. They cannot attend the school regularly since they spend hours in fetching water. And this is the truth. जो शहरों में है उनकी बात नहीं, गाँव में जो ढाणियों में बच्चे स्कूल में आते हैं वो कई दिन तक नहीं आते, या एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, क्योंकि एक दिन पानी लेने जाते हैं, अगले दिन फिर वो जो पानी भर के लाते हैं ना उसको कंज्यूम करते हैं, फिर अगले दिन टाइम पे स्कूल आते हैं, फिर एक दिन नहीं आते हैं, फिर एक दिन स्कूल आते हैं। बच्चा, दिस इज़ द रियलिटी एंड दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ अदर्स वी हैव टू सेव वाटर। एंड आई होप दिस इज enough for today's video. So we will continue this chapter in our next video. Till then, take care everybody and keep studying. Thank you.